عائشہ خان جو کہ ایک لیڈی فارسٹ رینجر تھیں، ان کے لیے پہاڑی جنگلات صرف ان کا پیشہ نہیں بلکہ ان کی روح کا حصہ تھے۔ ایبٹ آباد سے دور وادی کاغان کی بلندیوں پر واقع بالا کوٹ نیشنل ریزرو کی گھنی اور دشوار گزار حدود ہی عائشہ کا ٹھکانہ تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں دیدار کے دیو قامت درخت صدیوں سے کھڑے تھے اور انسان کی آواز قدرت کے شور میں دب کر رہ جاتی تھی۔ عائشہ کو یہاں گشت کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ریزرو عموماً پرسکون رہتا تھا، لیکن اس کے سکون میں ہمیشہ ایک گہرا، قدیم اور چھپا ہوا خوف پوشیدہ تھا۔ مقامی لوگ اس علاقے کو جناتی جنگل کہتے تھے اور غروب آفتاب کے بعد وہاں جانے سے سختی سے گریز کرتے تھے۔ یہ نومبر کے اوائل کے دن تھے، جب سردیوں کی پہلی برف باری کا امکان ہوتا ہے۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا اور ہوا میں ایک تیز چیختی ہوئی سردی تھی۔ عائشہ اپنی تنہا چوکی پر بیٹھی تھی جو ریزرو کی سب سے اونچی چوٹی پر بنائی گئی تھی۔ اس کا وائرلیس سیٹ ریڈیو اکثر سگنل چھوڑ دیتا تھا اور اس کی سب سے بڑی ساتھی اس کی اپنی خاموشی تھی۔ چوکی کے باہر جنگل ایک لام تناہی کالی اور پراسرار دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اس دن صبح سے ہی ایک عجیب بات تھی۔ جنگل میں عام طور پر جو گونج، پرندوں کی چہچہاہٹ یا پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ رہتی تھی، بالکل تھمی ہوئی تھی۔ وہاں ایک دم پن ڈراپ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وادی کاغان نے خوف کے مارے اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ عائشہ اپنی روزانہ گشت کی رپورٹ لکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے اندھیرے نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی اس نے وہ آواز سنی۔ یہ کسی جانور کی گراہٹ نہیں تھی، نہ ہی سرد ہوا کا شور۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو اس کے کانوں سے زیادہ اس کی حسیات کو لرزا گئی۔ یہ لگ بھگ ایک سسکی یا کھانسی جیسی تھی، انتہائی آہستگی سے، مگر اتنی قریب جیسے کوئی ٹھیک اس کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہو۔ عائشہ نے قلم نیچے رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس ویرانے میں ڈرنے کے بجائے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اس نے اپنی سروس رائفل اٹھائی اور آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ اس نے صاف لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز پلٹ کر اس کی طرف لوٹ آئی، سنسان فضا میں گونج کر فنا ہو گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور فلیش لائٹ آن کی۔ روشنی کی تیز شعاعیں گھنے جنگل کے بیچ سے گزری، جہاں صرف کالی مٹی، درختوں کی جڑیں اور دھندلی جھاڑیاں نظر آ رہی تھی، مگر کوئی ذی روح وہاں موجود نہیں تھا۔ جب وہ واپس اندر آئی اور دروازہ بند کرنے لگی، تب اس کی نظر زمین پر پڑی۔ اس کے چوکی کے دروازے کے ٹھیک باہر گیلی مٹی پر ایک گہرا نشان تھا۔ یہ نشان نہ تو کسی انسان کے بوٹ کا تھا، نہ ہی کسی پہاڑی جانور کے پنجے کا۔ یہ ایک مکمل گول دائرہ تھا جس کا قطر تقریباً 1 فٹ تھا اور اس کے بیچ میں 4 چھوٹے نوکیلے نشان تھے، جیسے کسی نے پتھر سے گودے ہوں۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ نشان اندر کی طرف کھینچا ہوا تھا، جیسے کوئی چیز زمین کے اندر سے ابھری ہو اور ٹھیک دروازے کے باہر آ کر رک گئی ہو۔ عائشہ نے جلدی سے اپنی چھوٹی ڈائری نکالی اور اس نشان کی ہو بہو نقل بنانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے کیریئر میں ہر طرح کے نشان دیکھے تھے، برفانی چیتا کے پنجے، کالا ریچھ کے نشان، لیکن یہ نشان یکسر نیا تھا، عجیب تھا۔ رات کے 8 بج گئے۔ عائشہ اپنی چائے اور ایک پرانی میڈیکل ہینڈ بک لے کر بیٹھی تھی، پر اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ اس کا دھیان بار بار اس گول نشان کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کے وائرلیس سیٹ پر سٹیٹک کی تیز آواز آئی۔ یہ خلاف معمول تھا کیونکہ پورے دن ریڈیو ڈیڈ تھا۔ اس نے تیزی سے سیٹ اٹھایا۔ ہیلو، سیکٹر 3 سے عائشہ، کیا تم سن رہے ہو؟ اوور۔ صرف کی آواز جاری رہی، لیکن اس اسٹیٹک کے شور میں ایک لمحے کو اس نے کچھ سنا۔
یہ آواز ذہن میں ایک چھوٹی سی چنگاری کی طرح لپکی۔ یہ کوئی انسانی آواز نہیں تھی، لیکن ایک طویل، کانپنے والا صوتی شور تھا، جیسے کوئی بہت زور سے سانس لے رہا ہو اور اس کی سانس کے اندر بھن بھناتی مکھیوں کا جھنڈ موجود ہو۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے مائک زور سے دبا کر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اپنی لوکیشن بتاؤ فوراً۔ اوور۔ پھر سے گہرا سکوت چھا گیا۔ اسٹیٹک فوراً رک۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اب جنگل صرف کالا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی فضا میں سائے ناچ رہے تھے، جیسے ہوا میں کوئی ناقابل دید شے تیزی سے حرکت کر رہی ہو۔ اس کی نظر ایک دیودار کے درخت کی طرف گئی، جو اس کی چوکی سے تقریباً 50 فیٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس درخت پر تقریباً 10 فیٹ کی اونچائی پر اس نے کچھ دیکھا۔ یہ ایک سفید چمکدار چیز تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ کوئی برفانی الو ہوگا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چیز سیدھا اس کی چوکی کی طرف گھور رہی ہے۔ یہ چمکدار چیز 2 گول نشان تھے، جو کسی کی آنکھیں لگ رہی تھیں۔ ان کا رنگ ہلکا سا نیلا تھا اور وہ بغیر پلکیں جھپکائے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے عائشہ کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اس نے جھٹکے سے فلیش لائٹ اٹھائی اور اس چمکدار حصے پر تیز روشنی ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی وہ سفید چمکدار چیز فوراً اوجھل ہو گئی۔ لیکن اس کے اوجھل ہونے سے پہلے عائشہ نے ایک چھوٹی بھیانک تفصیل نوٹ کی۔ وہ چمکدار آنکھیں نہیں تھیں، وہ 2 چھوٹی گول سفید ہڈیاں تھیں، جو اس درخت کے تنے سے باہر جھانک رہی تھی اور ان پر چاند کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی، اور ان ہڈیوں کے بیچ ہلکی گیلی تازہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ عائشہ کو ایک خوفناک حقیقت سمجھ میں آئی۔ جو چیز اسے گھور رہی تھی وہ درخت کے باہر نہیں تھی، وہ شے اس درخت کے اندر تھی اور اس کے سوراخ سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سبھی کھڑکیوں اور دروازوں کو لاک کر دیا، رائفل کو ہر لمحہ تیار رکھا۔ اسے پتا تھا کہ بالا کوٹ ریزرو کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس رات وہ محافظ جنگل نہیں، بلکہ جنگل کی سب سے قدیم اور بھیانک چیزوں کے سامنے ایک بے بس شکار تھی۔ لیکن سب سے بڑا ڈر ابھی باقی تھا۔ آدھی رات کے قریب جب وہ فرش پر رائفل لیے بیٹھی تھی، اس نے اپنی چھت پر چھوٹے گول نشان کی تھپ تھپ سنی، جیسے وہی 4 نوکیلے نشان واپس آ گئے ہو، اور اب وہ اس کے بالکل اوپر تھے۔ اور اس کے بعد وہ آواز آئی، حسس۔ اب یہ آواز اور بھی زیادہ تیز تھی، اور اس کے ساتھ سرد اور شدید بدبودار ہوا کی ایک لہر اس کے بند دروازے کے نیچے سے آئی، جس کی بو ایسی تھی جیسے ہزاروں سال سے کوئی چیز زمین کے نیچے گل سڑ رہی ہے۔ رات کے آخری پہر تک عائشہ خان جاگتی رہی۔ وہ فرش پر بیٹھی، رائفل کو سینے سے لگائے، اس خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہی تھی کہ باہر کوئی شے موجود تھی، ایک ایسی شے جو چھت پر چل سکتی تھی اور جس کی بو میں ہزاروں سال کی گلی سڑی مٹی کی مہک تھی۔ ہر تھپ تھپ کی آواز پر اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا، لیکن وہ ڈری ہوئی نہیں تھی۔ اب وہ غصے میں تھی۔ اسے ایک بے جان چوکی میں قید کر دیا گیا تھا۔ طلوع آفتاب کا پہلا ہلکا پیلا رنگ کھڑکی میں داخل ہوا تو عائشہ نے پہلا سکون کا سانس لیا۔ ایسا لگا جیسے روشنی نے اس وحشت کو عارضی طور پر بھگا دیا ہو۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ فضا میں اب بھی ویسی ہی سردی اور وہ ناگوار میٹھی بدبو موجود تھی، لیکن جناتی جنگل پھر سے خاموش تھا۔ عائشہ نے اپنی نظریں چوکی کی چھت کی طرف اٹھائیں۔ اس کی چھت لکڑی اور ٹین کی پرانی چادروں سے بنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے بہت سے نکیلے نشان یا پنجوں کے نشان ملیں گے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا،
छत साफ थी। इसके बोझल जिस्म ने जमीन पर हल्की सी आवाज तो की थी, लेकिन कोई निशान मौजूद नहीं था। ये बात पहले से ज्यादा परेशान कुन थी। वो चीज सिर्फ वजन के बगैर या बिल्कुल गैर तबई नॉन फिजिकल हालत में ही इतनी मजबूती से थप थप कर सकती थी। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर कल जो 1 फीट का गोल निशान था, अब वो मजीद गहरा हो चुका था। मट्टी इतनी मजबूती से अंदर खींची गई थी कि उसके किनारे पत्थर की तरह सख्त महसूस हो रहे थे, और उससे कुछ इंच के फासले पर मजीद 3 गोल निशान बन चुके थे, बिल्कुल उसी दायरे में जैसे वो शय चौकीदार का घर छोड़ने से पहले चारों अतराफ की तस्दीक करके गई हो। अब अभी उसको पड़ी नहीं। आयशा ने राइफल मजबूती से पकड़ी और अपने बाएं हाथ से वायरलेस सेट उठाया। उसने रात की खौफनाक चीख और मक्खियों के झंड जैसी आवाज को याद किया जो एस्टैटिक में से आई थी। वो आवाज एक पैगाम या एक इशारा थी। ये एक तकनीकी खराबी नहीं हो सकती। मुझे इस आवाज की जड़ तक पहुंचना होगा। उसने फैसला किया, ये जो कुछ भी है उसने मेरे रेडियो को इस्तेमाल किया है। जंगल में गहरी तलाश। आयशा ने अपना गश्ती बैग तैयार किया, जिसमें पानी, खुराक, इजाफी एम्यूनिशन और उसका हैंड हेल्ड जीपीएस ट्रैकर था। उसने ट्रैकर को ऑन किया और उसमें रात के वक्त आने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के डेटा का जायजा लिया। जीपीएस ने एक वाज़े समत दिखाई। मुदाखलत का मरकज उसके चौकी से जनूब मगरिब की तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर था। यह रिजर्व का वो हिस्सा था जिसे मुकामी लोग खंडरात की घाटी कहते थे, जहां कभी बहुत कदीम जमाने में बरतानवी दौर की लकड़ी काटने की एक चौकी लॉगिंग पोस्ट हवा करती थी। उस जगह को बहुत अरसे से तर्क कर दिया गया था। आयशा जानती थी कि यह एक इंतहाई खतरनाक सफर होगा। उसने अपने सीने पर एक छोटा सा खंजर बांधा और गहरे देवदार के दरख्तों के बीच अपनी मुहिम का आगाज किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल की फजा बदलती गई। परिंदों की आवाजें मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। जमीन की मिट्टी ज्यादा स्याह और दलदली होती गई। उस इलाके के दरख्त खौफनाक अंदाज में मोड़े हुए थे, जैसे उन्हें किसी बेपनाह ताकत ने जमीन की तरफ खींचा हो। वो देवेदार जिनके सीधे खड़े होने का फख्र था, अब थके हुए बूढ़ों की तरह झुके हुए थे और उनके तने अजीब तरह से फटे हुए थे। ट्रैकर पर सिग्नल मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार आयशा एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर पहुंची, जहां से नीचे उसे एक छोटी सी घास से ढकी हुई इमारत दिखाई दी। ये पत्थर की चौकी थी जिसे बरसों से जंगल ने तकरीबन निगल लिया था। उसके गिर्द खारदार झाड़ियां उगाई थीं और छत का बेशतर हिस्सा गिर चुका था। इस इमारत के करीब पहुंचते ही आयशा के वायरलेस सेट पर स्टैटिक का शोर फिर से बुलंद हो गया। अब ये इतना तेज था कि कान फटने लगे। यह आवाज किसी की चीख या वार्निंग से कम नहीं थी। आयशा ने राइफल को फायरिंग पोजीशन पर रखा और इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा कई दहाइयों पहले ही बोसीदा होकर गिर चुका था। अंदर शदीद बदबू आ रही थी, वही सड़ी हुई गली हुई बू जो रात को उसके चौकी के नीचे से आई थी। अंदर दाखिल होकर वो एक छोटे से कमरे में खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। उसकी फ्लैशलाइट सीधा कमरे के मरकज पर पड़ी। आयशा को एक झटका लगा। जमीन पर वो निशान था, वही गोल दायरा और 4 नोकीले निशान, लेकिन ये निशान उसकी चौकी के बाहर बने निशान से 10 गुना बड़ा था। ये गोलाई तकरीबन 8 फुट के कतर में फैली हुई थी और 4 नोकीले निशान
जिन्हें वो कल हड्डी समझी थी, वो दरअसल बड़े चमकदार सफेद नोकदार पत्थर थे जो मिट्टी में नस्ब थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज वो नहीं थी। जैसे ही उसने फ्लैशलाइट को फर्श के करीब किया, उसे उन बड़े निशानों के चारों तरफ छोटे छोटे सुराखों में वो छोटी गोल सफेद हड्डियां नजर आईं जो उसने रात को दरख्त के तने में देखी थी। ये हड्डियां किसी छोटे खोपड़ी के टुकड़ों की तरह लग रही थीं, और वहां एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों बिखरी हुई थीं। आयशा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो शय जमीन के अंदर रहती है, वो गोल निशान उसके जमीन से उभरने का रास्ता है, और वो पत्थर उसके पंजे है। लेकिन वो ये हड्डियां क्यों छोड़ती है? क्या ये उसका खाना है? उसने देखा कि फर्श के दरमियान में मौजूद सबसे बड़े दायरे में मिट्टी हल्की हल्की हरकत कर रही थी। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई चीज सांस ले रही हो। ठीक उसी लम्हे वायरलेस सेट जो उसके हाथ में बुरी तरह शोर मचा रहा था, अचानक मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। ये आवाज वायरलेस सेट से नहीं आई थी, उस कमरे के चारों तरफ से, और उसमें एक कदीम, सर्द और बदला लेने वाला लहजा था। आयशा ने राइफल उठाई। उसे मालूम था कि वो चौकी से निकलकर घाट में आ गई है। उसके पास पीछे भागने का वक्त नहीं था। एक लंबा साया पड़ा। अंदर की इमारत में एक लंबा साया पड़ा। आयशा खान ने पलक झपकते ही घूमकर पीछे देखा। खंडरात की चौकी का खुला दरवाजा अब रोशनी और साये का मैदान जंग बन चुका था। उसकी पसलियों में अचानक एक ठंडा भारी एहसास डूब गया। ये महज डर नहीं बल्कि खौफ और हकारत का आमेजा था। वहां कोई ठोस वजूद नहीं था। वो साया जो उसके पीछे पड़ा था, वो किसी शख्स या जानवर का साया नहीं था। ये फजा में फैली हुई रोशनी की ही एक मनफी शबीह थी। एक ऐसा गहरा, काला, मरोड़ा हुआ खला जो सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। ये साया तेजी से फैल रहा था, जिसकी शक्ल में एक लंबी बेडोल सी हैयत थी। आयशा ने राइफल को मजबूती से अपने कंधे से लगाया। वो एक तरबियत याफ्ता रेंजर थी, और उसकी तरबियत उसे गैर मरई खतरे से लड़ना नहीं सिखाती थी। लेकिन जो चीज वाज़ेह थी वो हमला थी। रुक जाओ, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज कांप गई थी। साया नहीं रुका। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। आयशा ने बगैर हिचकिचाहट के 3 गोलियां फायर कर दी। धड़ 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 धड़। गोलियों की आवाज ने खामोश खंडरात को चीर दिया। माहौल गंधक की बू से भर गया, लेकिन गोलियां साये पर कोई असर नहीं कर सकी। पहली गोली सीधा दरवाजे के किनारे पत्थर की दीवार से टकराई और दीवार का एक टुकड़ा चटक गया। बाकी 2 गोलियां उस जगह से गुजर गईं जहां साया था। आयशा को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे गोलियां पतले कपड़े में से निकल गई हों। साया अब उसके बहुत करीब था। उसे शदीद सर्दी की एक लहर महसूस हुई जो उसकी रूह तक चली गई। दीवारों से आने वाली सरगोशी अब एक बेआवाज कहकाहे में बदल गई थी। इंसानी ढाल, तुम समझती हो? जो चीज तुम्हें छू नहीं सकती, उसे तुम्हारी धात क्या खाक रोकेगी? आयशा के जिहन में खतरे की घंटियां बजी। उसे मालूम हुआ कि ये एक ऐसा मुकाबला है जहां हिम्मत हथियारों से ज्यादा कारआमद होगी। उसने राइफल को घुमाया और उसकी बट को सीधा साये के मरकज में दे मारा। इस बार एक अजीब व गरीब क्रच क्रच की आवाज आई, जैसे लकड़ी को पानी में मसल दिया जाए। साया एक लम्हे के लिए लर्जा और वापस सुकर गया। आयशा ने इस मौका को गनीमत जाना। वो पीछे हटी और उस कमरे के सबसे पिछले कोने की तरफ दौड़ी, जहां पत्थरों का एक पुराना ढेर लगा था। उस ढेर के पीछे उसे एक हैरान कुन चीज नजर आई।
मलबे के बीच में मट्टी और कीचड़ में धंसा हुआ एक छोटा सा लोहे का संदूक था जिसका ताला टूटा हुआ था। आयशा ने जल्दी से उसे खोला। अंदर पुरानी घुलती हुई मट्टी की बदबू के बीच एक मोटी चमड़े की बाइंडिंग वाली डायरी मौजूद थी। डायरी के ऊपरी सफ़े पर धुंधले कलम से अंग्रेजी में लिखा था, लोगनिंग ऑफिसर सर जेफरी हडसन, बालाकोट पोस्ट 1932। ये वही तारीख थी जिससे मुकामी लोग इस इलाके को मनहूस और जिन्नाती जंगल कहने लगे थे। आयशा ने तेजी से डायरी के आखिरी सफ़ात खोले। पेंसिल से लिखी हुई तहरीर ज्यादातर गुल चुकी थी, लेकिन आखिरी मुकम्मल इंदराज खौफ और घबराहट का एक लरजता हुआ शाहकार था। आयशा ने उसे तेजी से पढ़ा, जहन ही में उर्दू में तर्जुमा करते हुए। नोट, 14 नवंबर 1933। अब 7 दिन हो गए हैं। पीटर गायब हो गया। वो बगैर किसी निशान के गायब हुआ। उसके टेंट में सिर्फ मट्टी भरी मिली। हमने यहाँ खुदाई शुरू की थी, हड्डियाँ तलाश कर रहे थे। बहुत गोल नोकीले पत्थर। मकामी लोगों ने हमें खबरदार किया था कि ये जगह मट्टी के जिन का ठिकाना है, कि वो सिर्फ वही जागता है जहां उसकी जमीन को चीरा जाए। हडसन, तुमने सब तबाह कर दिया। लकड़ी की लालच में हमने वो कदीम तवाजुन तोड़ डाला है जो बरसों से जंगल में कायम था। अब जब हम सोते हैं तो छत से थप थप की आवाजें आती है, और मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसकी सांस में मक्खियों का झुंड बन आता है। हमें भागना होगा उससे पहले कि ये जिन जमीन से निकलकर हमें खा जाए और हमारे सर के छोटे छोटे टुकड़े यहां निशान के तौर पर छोड़ दे। वो आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मक्खियों का झुंड, सर के टुकड़े, गोल नोकीले पत्थर, ये सब कुछ वो पहली रात ही देख और सुन चुकी थी। उसे मालूम हो गया कि वो एक भूत नहीं, एक अफरीत नहीं, बल्कि मिट्टी का जिन नामी कोई कदीम हस्ती थी जो जमीन के नीचे रहती थी और सिर्फ तब बाहर आती थी जब उसके ठिकाने को तोड़ा जाता था। और ये चौकी, ये खंडरात उस जिन का पहला शिकार थे। जमीन का जागना। इससे पहले कि आयशा कोई और सफ़ा पढ़ पाती, कमरे की फिजा ड्रामाई अंदाज में बदल गई। इसके हाथ में मौजूद डायरी का चमड़ा तेजी से गर्म होने लगा। फिर एक खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज आई। आयशा ने जमीन की तरफ देखा। फर्श पर मौजूद वो बड़ा 8 फुट का गोल निशान, जहां मट्टी हल्की हल्की सांस ले रही थी, अब तेजी से धड़कना शुरू हो गया था। निशान के चारों तरफ नस्ब किए गए नोकीले सफेद पत्थर, जिन्हें वो जिन के पंजे समझ रही थी, अब नीली हल्की रोशनी खारिज करने लगे थे। इमारत की पत्थर की दीवारें शिद्दत से हिलने लगीं। पत्थर और गाड़ा आयशा के सर पर गिरना शुरू हो गया। चौकी अब जमीन में धंस रही थी। दीवारों से आने वाली आवाज ने आखिरी वार्निंग दी, तुम्हें भी यही रहना पड़ेगा, जैसे वो ठहरे थे हमेशा के लिए। आयशा ने एक आखिरी नजर फर्श पर डाली। गड़गड़ाहट के साथ इस बड़े गोल दायरे के बीचों बीच काली, उसने लोहे का संदूक बंद किया, डायरी को अपने जैकेट के अंदर धकेला और खंडरात के गिरते हुए दरवाजे से बिजली की तेजी से बाहर की तरफ भागी। जैसे ही आयशा खंडरात से चंद कदम दूर हुई, एक भयानक गूंजने वाली आवाज के साथ वो सारी पत्थर की चौकी जमीन में धंस गई। वहां अब एक बड़ा गीली मट्टी का ढेर रह गया था, जिसके बीच में से नीली रोशनी अब भी निकल रही थी। आयशा ने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो जानती थी कि उसके पास सिर्फ एक हथियार बाकी है, मालूमात। उसे इस डायरी का राज खोलना था और फौरन किसी करीबी आबादी या हेडक्वार्टर तक पहुंचना था, इससे पहले कि वो जिन दोबारा जमीन से निकले और बालाकोट रिजर्व के सबसे ऊपर उसकी लाश के छोटे गोल निशान छोड़ जाए। उसका अगला ठिकाना, वो जगह जहां उसे मदद मिलने की उम्मीद थी, रिजर्व के जनूब मशरक में मौजूद
एक छोटा चरवाहा गांव था जो कई घंटों की पैदल मसाफत पर था। खंडरात के जमीन में धंस जाने के बाद आयशा की पूरी दुनिया ही जैसे उलट गई थी। अब उसे मालूम था कि उसका मुकाबला सिर्फ एक जंगल में काम करने से नहीं, बल्कि सदियों पुराने जमीन के अंदर पलने वाले एक वजूद से था। उसके कदमों में बिजली की सी तेजी थी, लेकिन उसके कंधों पर डायरी का बोझ भी था और उसे मिट्टी का जिन की हकीकत का इल्म था। आयशा ने जुनूब मशरिक की सिमत कागान की बुलंदियों पर मौजूद चरवाहा गांव शाहीन कोट की तरफ रुख किया। नवंबर के अंधेरे में जंगल और भी खौफनाक लग रहा था। दरख्तों की शाखें मड़ी हुई, साए घने और हर पत्थर पर कोई खतरा मंडलाता नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे एक अजीब महसूस हुआ। उसके पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मिट्टी का जिन किसी एक मकाम पर जकड़ा हुआ है और वो अपने मरकज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, या फिर वो सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था। बहरहाल ये आयशा के लिए आर्जी सुकून का बायस था। उसने रास्ते में हेडसन की डायरी को दोबारा खोला। आखिरी सफ़े के बाद एक नक्शा बना हुआ था, एक खींचा हुआ नक्शा जिसमें खंडरात की चौकी के करीब 4 पॉइंट्स को तहफ़्फ़ुज़ी पत्थर गार्ड स्टोन्स का नाम दिया गया था। एक नोकदार तीर के साथ हडसन ने लिखा था, ये इलाका इन पत्थरों से घिरा हुआ है। जब तक इन चारों को नहीं हटाया जाता, ये शय। आयशा का दिमाग तेजी से चला। वो गोल निशान और 4 नोकीले सफेद पत्थर जो उसने खंडरात में देखे थे, वो जिन का पंजा नहीं, बल्कि कदीम बंधन के टूटे हुए टुकड़े थे। हडसन ने लकड़ी की लालच में इन पत्थरों को उखाड़ दिया था और इस तरह मिट्टी के जिन को जुज़वी तौर पर आजाद कर दिया था। इसका मतलब है कि ये शय अभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुई है, आयशा ने सोचा। और वो 4 निशान जो मेरी चौकी के बाहर थे, वो मेरे आसपास जमीन में मौजूद बाकी तहफ़्फ़ुज़ी पत्थर की लोकेशन थे जिन्हें वो बाहर निकालना चाहती है। शदीद थकावट और खौफ के आलम में आयशा बिल आखिर शाहीन कोट पहुंची। ये एक छोटा कदीम गांव था जो लकड़ी और पत्थर के कच्चे घरों पर मुश्तमिल था। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे और पूरा गांव सो रहा था। आयशा ने गांव के किनारे एक बुजुर्ग चरवाहे का घर देखा जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और बड़ा था। दरवाजा खटखटाने के लिए उसका हाथ कांप रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी हिकमत थी, बाहर आया। ये बाबा करम शाह थे, जो गांव के बुजुर्ग और रिवायतों के मुहाफिज समझे जाते थे। बाबा करम शाह ने आयशा की वर्दी, थकावट और उसके हाथ में मौजूद राइफल को देखा। उनकी नजरें आयशा के चेहरे के खौफ को पहचान गई और फिर उनकी नजर जैकेट के नीचे दबी डायरी पर पड़ी। बेटी आयशा, तुम इस वक्त क्यों आई हो? बाबा करम शाह ने धीरे से पूछा। और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम जिन्नाती जंगल की तरफ से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आई हो। आयशा को लगा जैसे इसका दम घुट रहा हो। वो फौरन अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। बाबा, वो जाग गया है, मिट्टी का जिन जाग गया है। मैंने एक डायरी ढूंढी है, 1932 की एक अंग्रेज अफसर की डायरी। उसने एक मुआहदा तोड़ दिया था। और अब बाबा करम शाह ने आयशा की बात दरमियान में ही रोक दी। उनकी आंखें गम और गुस्से से भरी हुई थी। इससे पहले कि तुम बोलो, मुझे बताओ बेटी, तुम्हारी चौकी के दरवाजे के बाहर कैसा निशान था? आयशा ने फर्श पर बैठकर जल्दी से वही गोल निशान बना दिया जिसमें 4 नोकीले हिस्से थे। बाबा करम शाह ने अपना सर हिलाया जैसे उन्हें सब कुछ मालूम हो। वही पत्थरों का तोप, ये पहला पत्थर था। बेटी, ये जिन तभी जागता है जब वो जमीन को चीरा जाए। ये कोई भूत नहीं है, ये जंगल का हिफाजती रूह है जिसे हम मुस्तकर कहते थे। ये जिन नहीं, ये जमीन की सजाएं हैं। बाबा करम शाह ने आयशा के लिए गरम कहवा तैयार किया
और फिर एक अफसानवी किस्सा सुनाना शुरू किया। बरसों पहले जब यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे, तब हमारे बुजुर्गों ने जंगल में हद से ज्यादा मदाखलत नहीं की थी। ये मुस्तकर एक कदीम कुव्वत है जो जमीन के नीचे सोया रहता है। जब तक हम हद से बाहर दरख्त न काटें या सदियों पुराने पत्थरों को न छेड़े, मुस्तकर नहीं जागता। ये पत्थर वो चौकियां हैं जो हमारे और इस कदीम कुव्वत के दरमियान मुआहिदा है। 1932 में वही अंग्रेज अफसर हडसन आया जिसे सोने और लकड़ी का लालच था। उसने इस इलाके में बहुत ज्यादा खुदाई और लकड़ी काटने का हुक्म दिया और इस दौरान इसने चारों तरफ मौजूद तहफ्फुज़ी पत्थरों को एक एक करके हटाना शुरू कर दिया ताकि वो इस इलाके पर मुकम्मल कब्जा कर सके। बाबा करम शाह की आवाज कांप रही थी। मुस्तकर ने उसे और उसके साथियों को सजा दी। ये लोगों को मिट्टी में खींच लेता है और उनकी रूह को हमेशा के लिए जमीन के अंदर कैद कर देता है। वो गोल निशान उसका मन है जो जमीन से बाहर निकलता है और सबको खा जाता है। और वो सफेद हड्डियां जो तुमने दरख्तों में देखी, वो उसके शिकार का वो हिस्सा है जो उसके काम का नहीं रहता, उनकी खोपड़ियां। हडसन ने 4 में से सिर्फ 3 पत्थर हटाए थे। चौथा पत्थर वो नहीं ढूंढ सका और खौफ के मारे उसने ये डायरी छुपा दी और भाग गया। बाबा करम शाह ने आयशा की तरफ देखा। उस डायरी में वो चौथा पत्थर कहाँ है, उसका राज है। मुस्तकर अब तुम्हारी चौकी पर इसलिए वापस आया था क्योंकि वो पत्थर उसके ठिकाने के करीब है और वो उसे मुकम्मल तौर पर आजाद होने के लिए ढूंढ रहा है। आयशा ने अपनी जैकेट में छुपी डायरी को छुआ। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि मुस्तकर के आखिरी तौक का राज था। अब उसे मालूम था कि उसे भागना नहीं बल्कि लड़ना होगा, और उस लड़ाई में हथियार सिर्फ उसकी बंदूक नहीं बल्कि वो नामुकम्मल मुआहिदा था जो जंगल में बाकी रह गया था। मुझे वो चौथा पत्थर ढूंढना होगा, आयशा ने कहा, इससे पहले कि मुस्तकर उसे खुद ढूंढकर मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाए और पूरे बालाकोट को निगल ले। शाहीन कोट में रात का पहर खौफ और अज़्म के दरमियान गुजरा। आयशा खान की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक ही ख्याल था, चौथा तहफ्फुज़ी पत्थर। उसने सर जेफरी हडसन की पुरानी मट्टी ज़दा डायरी को खोला जो अब मुस्तकर के खिलाफ उनका सबसे अहम हथियार थी। बाबा करम शाह ने रात भर आग जलाए रखी। सुबह की पहली रोशनी में जब आयशा ने उन्हें डायरी में मौजूद वो सफ़हा दिखाया जहां चौथे पत्थर का राज छुपा था, तो बाबा की आंखें हैरत से फैल गईं। सफ़हे पर डायरी के खुश्क हो चुके अंक से एक छोटा सा शेर लिखा था जो किसी पहेली की तरह था। हडसन ने लिखा था, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं और पहली लकड़ी को आखिरी सजा दी गई थी, वहां मेरी लालच छुपी है। आखिरी महर जो चौथे कोने में है, देवदार के दिल में पैवस्त है। देवदार के दिल में? आयशा ने उलझन में पूछा। बाबा करम शाह ने एक गहरा सांस लिया। बेटी, देवदार के दिल में पैवस्त का मतलब एक दरख्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है देवदार की कुर्बान गाह। 1930 की दिहाई में जब अंग्रेज यहाँ लकड़ी काट रहे थे, तो वो सबसे पहले कटे हुए देवदार को एक खास चट्टान पर रखकर अपनी मुहिम का आगाज किया करते थे। वहीं सबसे पहली लकड़ी को काटने की सजा दी गई थी। आयशा और बाबा करम शाह ने तेजी से तैयारी की। बाबा ने आयशा को एक पेतल का तावीज दिया जिस पर अरबी में एक कदीम दुआ कंदा थी, और उसे सख्ती से हिदायत की कि वो उसे हर वक्त अपने गले में रखे। बाबा ने कहा कि ये मुस्तकर को आर्जी तौर पर भटका सकता है मगर रोक नहीं सकता। सुबह के 9 बजे थे। सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था, लेकिन जिन्नाती जंगल की गहराइयों में रोशनी बमुश्किल ही पहुंच पाती थी। आयशा और बाबा करम शाह ने खंडरात की घाटी के बरअक्स सिमत मशरिक का रुख किया,
जहां रिजर्व के सबसे कदीम और बड़े देवदारों का एक झुंड था। जब वो इस मकाम पर पहुंचे, आयशा का दिल बैठ गया। ये एक खौफनाक जगह थी। जमीन पर एक गोला चमकदार सिंगे सियाह ब्लैक स्लेट रॉक मौजूद थी जो कुर्बानगाह की तरह नजर आती थी। इसके चारों तरफ घने देवदार इस तरह झुके हुए थे जैसे वो पत्थर को सलाम कर रहे हों। इस कुर्बानगाह के आसपास की मिट्टी बाकी जंगल से ज्यादा सफेद और रेतली थी। बाबा करम शाह ने हाथ उठाकर दुआ पढ़ी। हडसन ने इस जगह को अपनी लालच की निशानी बना लिया था। इस सिंगे सियाह पर दरमियान में वही 4 नोकीले निशान कंधा थे जो आयशा ने चौकी और खंडरात में देखे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई पत्थर। बाबा करम शाह ने जमीन की तरफ इशारा किया। बहुत से मुसलमान होगा। उसने पत्थर को छिपा नहीं दिया बल्कि उसे तब्दील कर दिया। आयशा ने कुर्बानगाह का बगौर मुआयना किया। संगे सियाह के दाएं कोने में एक छोटा सा टूटा हुआ कोना था। आयशा ने झुककर मट्टी हटाई। वहां से एक छोटा पीपल का पौधा बाहर झांक रहा था। वो देखो, बाबा करम शाह ने सरगोशी की। जब हडसन ने आखिरी पत्थर निकाला तो उसकी जगह मुस्तकिल को मुस्तकिल तौर पर दूर रखने के लिए उसने एक जीता जागता दरख्त नस्ब कर दिया। ये पत्थर से ज्यादा मजबूत बंधन था। आयशा को वो खौफनाक मंजर याद आया जो उसने रात को चौकी के बाहर देखा था। दरख्त के अंदर से झांकती हुई सफेद हड्डियां। तो मुस्तकर ने उस दरख्त को पहले ही तबाह कर दिया है। आयशा के अल्फाज सर्दी में जम गए और उसने दरख्त की जगह जो निशान छोड़ा था वो उसकी खोपड़ी थी, जो उस दरख्त की मौत की अलामत थी। जैसे ही आयशा ने ये अल्फाज कहे, जंगल में एक बार फिर हस की आवाज गूंजी। यह आवाज इस कदर करीब थी कि इस बार वो न सिर्फ उसे सुन सकती थी बल्कि अपने चेहरे पर हवा का ठंडा झोंका महसूस कर सकती थी। आयशा ने राइफल उठाई। जमीन दहलने लगी। बाबा करम शाह ने तेजी से कहा, हमें देर हो गई। मुस्तकर ने वो पौधा हटा दिया है और अब वो इस जगह का खून मांगेगा। इस पत्थर को ढूंढने का एक ही रास्ता है, खुदाई। आयशा ने जल्दी से अपने गुश्ती बैग से एक छोटी बेलचा निकाला और कुर्बानगाह के बीच में खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी काली, नम और अजीब तरह से हल्की थी। हर बार जब बेलचा मिट्टी से टकराता तो ऐसा लगता था जैसे वो नीचे मौजूद शय को कोई तकलीफ दे रहा हो। अचानक कुर्बानगाह के किनारे से काली मिट्टी का एक रेला बह निकला। उस रेले ने तेजी से एक इंसानी हाथ की शक्ल इख्तियार कर ली। एक बड़ा, लंबा मिट्टी का पंजा जो आयशा की तरफ बढ़ा। बाबा करम शाह ने जोर से दुआ पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने अपने गले में मौजूद तावीज को हाथ में लिया और उसे मिट्टी के हाथ की तरफ दिखाया। मिट्टी का हाथ लर्जा और सेकंडों में बिखर गया, लेकिन इस अमल में मिट्टी के छोटे ज़रात बाबा करम शाह के चेहरे से टकराए। उसे दर्द हुआ है, आयशा ने चीख कर कहा। आयशा ने और जोर से खुदाई की। आधा फुट नीचे उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई। वहां चौथा तहफ्फुज़ी पत्थर मौजूद था। एक हल्का नीला चमकता हुआ नोकीला पत्थर, बिल्कुल वही जो उसने खंडरात में देखा था। यह पीपल के पौधे के नीचे दबा हुआ था जिसे हडसन ने हिफाजती मोहर के तौर पर लगाया था। जैसे ही आयशा ने पत्थर को छुआ, जमीन की गड़गड़ाहट शदीद चीख में बदल गई। संगे सियाह के बीच में वो नोकीले निशान जहां आयशा खुदाई कर रही थी अब फूलने लगे। काली मिट्टी का एक बड़ा गोला उभरा और उस गोली के बीच में से 2 खौफनाक नीली आंखें उभरकर बाहर आ गईं। ये आंखें वही थी जो उसने चौकी में हड्डियों के तौर पर देखी थी। ये मुस्तकर था जो अब आधा जमीन के अंदर और आधा बाहर था। गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। मुस्तकर ने एक चीख मारी जो मगसी भंभनाहट से शुरू होकर
तेज धमाके में खत्म हुई। आखिरी मुहर, मेरी आजादी, तुम उसे नहीं छू सकती। आयशा को मालूम था कि उसके पास उसे वापस जमीन में गाड़ने का वक्त नहीं है। उसने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और बाबा करम शाह की तरफ देखा। बाबा, ये पत्थर अब एक नया मुआहिदा है, हमें उसे उसकी जगह पर दोबारा नस्ब करना होगा। आयशा और बाबा करम शाह ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा करम शाह ने अपना तावीज आयशा को थमाते हुए कहा, मुस्तकर तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो बदले का खून नहीं ले लेता। बेटी, तुम भागो, उसे किसी तरह जमीन से ऊपर आने दो और फिर मैं तुम्हें वक्त दूंगा। बाबा करम शाह ने अचानक अपने हाथ में मौजूद पुराना लकड़ी का डंडा कुर्बान गाह के वस्त में मारा और एक बुलंद आवाज में कोई नामालूम दुआ पढ़ी। मुस्तकर की नीली आंखें अचानक बाबा की तरफ मुड़ी। बाबा करम शाह के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। वो जानते थे कि अब वो क्या करने जा रहे थे। आयशा को चीखने का वक्त भी नहीं मिला। मुस्तकर के उभरे हुए मट्टी के मन ने तेजी से बाबा करम शाह की तरफ रुख किया और वो सेकंडों में बाबा को अपने अंदर मट्टी के गड्ढे में खींच लिया। सिर्फ एक खून आलूद निशान वहां रह गया। आयशा को एक खौफनाक इंतखाब करना था, या तो वो बाबा करम शाह की मौत का बदला ले या बाकी जंगल और गांव को बचाने के लिए इस पत्थर को इसकी सही जगह पर नस्ब करे। उसने फैसला कर लिया। आंखों में आंसू और हाथ में पत्थर लिए वो वापस शाहीन कोट की तरफ दौड़ पड़ी। उसे मालूम था कि अगला मुकाबला शाहीन कोट गांव के कदीम कब्रिस्तान में होने वाला है, जहां मुस्तकर हमेशा के लिए सोया था। आयशा खान के गले में बाबा करम शाह का दिया हुआ पैतल का तावीज लटक रहा था, लेकिन उसके सीने में मौजूद खौफ तावीज के जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर उसे मालूम था कि मुस्तकर अब पूरी ताकत से आजाद हो चुका है और उसका ताकुब कर रहा है। खुदाई और कुर्बानी ने उसे वो गुस्सा और तवानाई दे दी थी जो उसे मुकम्मल तौर पर जमीन से बाहर निकलने के लिए दरकार थी। आयशा शाहीन कोट गांव के किनारे पर वाक़े कदीम कब्रिस्तान की तरफ भागी। ये वो जगह थी जहां बाबा करम शाह ने कहा था कि मुस्तकर हमेशा के लिए सोया रहता है, उसकी आरामगाह। जैसे ही आयशा कब्रिस्तान के शिकस्ता दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, सूरज तेजी से बुलंदियों पर चढ़ चुका था, लेकिन यहां की फिजा अजीब सी सर्द और तारीक थी। पुरानी कब्रें जिन पर नीम के दरख्तों की शाखें झुकी हुई थीं, खौफनाक साये डाल रही थी। मट्टी की बू यहां सबसे ज्यादा गहरी थी। आयशा ने राइफल को जमीन पर टेक लगाया और अपने हाथ में मौजूद चमकदार नीले पत्थर को देखा। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये हजारों साल पुराने मुआहदे की आखिरी कड़ी थी। आयशा ने तेजी से कब्रिस्तान के बीच में, जहां सबसे कदीम कब्रें मौजूद थी, एक पत्थर की स्लेट तलाश की। स्लेट पर एक पुराने रस्मल खत में कुछ लिखा हुआ था जिसे आयशा समझ नहीं सकी, लेकिन उसे यकीन था कि यही वो जगह है। उसने पत्थर की स्लेट को हटाया। स्लेट के नीचे मिट्टी एक गहरा नम सुराख बना रही थी, जैसे जमीन ने अपना मन खोल दिया हो। और उस सुराख के बीच में वही गोल निशान कुंदा था जिसमें 4 नोकीले पत्थर नस्ब होने की जगह खाली थी। आयशा ने आखिरी पत्थर को निशान के चौथे कोने में नस्ब करने की कोशिश की। ठीक उसी लम्हे कब्रिस्तान की जमीन गड़गड़ाहट के साथ लरज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक चीख आई जो अब सरगोशी या भनभनाहट नहीं, बल्कि मिट्टी और चट्टान की गरज थी। आयशा ने ऊपर देखा। जंगल के किनारे से, जहां से वो आई थी, काली मट्टी का एक हैबतनाक सैलाब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई सैलाब नहीं था, ये मुस्तकर था, जो अब एक नीम इंसानी देव कामत शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसका जिस्म काली दलदली मट्टी का बना हुआ था, जिसमें जंगल की जड़ें और पत्थर धंसे हुए थे। उसका सर बेडोल था, जिसके बीच में वो 2 नीली गजबनाक आंखें चमक रही थी।
और उसके मुंह में से मक्खियों का एक बड़ा झुंड निकलकर आसमान की तरफ जा रहा था। मुस्तकर ने जमीन को पीटा। तुम मेरी जमीन में मुदाखलत कर रही हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आयशा को मालूम था कि उसके पास सिर्फ चंद सेकंड है। अगर उसने पहले पत्थर नस्ब किया तो उसे बाबा करम शाह की कुर्बानी का बदला मिलेगा, लेकिन अगर वो मुस्तकर को उसके ऊपर आने देती है तो वो उसे मट्टी में खींच लेगा। मुस्तकर तेजी से कब्रिस्तान के बीच में पहुंच गया। उसका हदफ वो नीला पत्थर था जो आयशा के हाथ में था। आयशा ने अपनी राइफल उठाई और सीधा मुस्तकर के नीली आंखों पर फायर कर दिया। धमाका! गोली मट्टी के ढेर में धंस गई, जिससे मुस्तकर के चेहरे पर एक बड़ा सुराख हो गया और काली बदबूदार मट्टी के टुकड़े हवा में बिखर गए। लेकिन उसे तकलीफ नहीं हुई। सुराख सेकंडों में खुद ब खुद भर गया। तो मुझे मट्टी से बनी चीज को धात से नहीं मार सकती इंसान, मुस्तकर गर्ज कर बोला। आयशा को एक ख्याल आया। उसने एक और गोली फायर करने के बजाय अपनी राइफल के कंधे से टेक लगाकर मुस्तकर के देव कामत जिस्म पर मौजूद सफेद नोकीले पत्थरों को निशाना बनाया। ये शायद उसके जिस्म के कमजोर हिस्से थे। धड़! गोली एक सफेद पत्थर से टकराई और उसे टकड़े टकड़े कर दिया। मुस्तकर ने एक घनाउनी चीख मारी। उसका पूरा मिट्टी का बदन एक लम्हे के लिए लर्जा, जैसे उसे हकीकी तकलीफ पहुंची हो। क्या? मुस्तकर चीखा। तुम मेरा बंधन क्यों तोड़ रही हो? उसने राइफल को फेंका, अपने हाथ में मौजूद नीले तहफ़्फ़ुज़ी पत्थर को मजबूती से पकड़ा और तेजी से उस कब्रिस्तान की स्लेट की तरफ दौड़ी। मुस्तकर की नीली आंखें पागलपन से उसका पीछा कर रही थी। उसने अपना आखिरी मट्टी का पंजा उठाया और आयशा की तरफ बढ़ा। जैसे ही पंजा आयशा की तरफ बढ़ा, आयशा ने तेजी से चौथा नीला पत्थर स्लेट के सुराख में ठोंस दिया। पत्थर के जगह पर नस्ब होते ही एक बेपनाह तवानाई का झोंका पूरे कब्रिस्तान में फूट पड़ा। जमीन से एक बरकी नीली रोशनी निकलकर आसमान की तरफ बढ़ी। मुस्तकर, जो बिल्कुल आयशा के करीब आ चुका था, ने एक खौफनाक इंसानी आवाज में चीख मारी। मुहादा! ये मुहादा फिर से बंध गया। मैं दोबारा कैद हो गया। मट्टी का देव कामत जिस्म तेजी से पिघलने लगा, जैसे किसी ने उसमें तेजाब डाल दिया हो। सेकंडों में वो काले और दलदली मट्टी के ढेर में बदल गया। उसके अंदर से निकलने वाली जगह सूख गई और नीली आंखों की चमक दम तोड़ गई। मक्खियों का भंभनाता हुआ झंड आसमान की तरफ गया और फौरन गायब हो गया। जब सब कुछ पुरसुकून हो गया तो वहां सिर्फ एक थकी हारी आयशा खान खड़ी थी, जो सांस ले रही थी और आंखों में आंसू लिए बाबा करम शाह की कुर्बानी को याद कर रही थी। अगले दिन आयशा खान ने बालाकोट नेशनल रिजर्व के हेडक्वार्टर को फोन किया और एक तफसीली रिपोर्ट भेजी। उसने हडसन की डायरी, चरवाहा गांव के बुजुर्गों के बयानात और मुस्तकर की मुकम्मल कहानी बयान की। हेडक्वार्टर ने उसे ज़हनी दबाव और हाइपोथर्मिया का नतीजा करार देते हुए खारिज कर दिया। आयशा ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने जाने से पहले 2 काम किए। अव्वल, उसने उस जगह की निशानदही की जहां बाबा करम शाह को जमीन में खींचा गया था, और वहां पत्थरों का एक ढेर बनाकर एक छोटी सी कब्र की निशानी बना दी। दोम, वो कब्रिस्तान में वापस गई और वहां उस सलेत पत्थर को एक बड़े कदीम देवदार के तने। आयशा ने कभी भी पहाड़ी जंगलात को नहीं छोड़ा। उसने शाहीन कोट के करीब ही एक छोटा सा घर बनाया और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो अब भी रेडियो और जीपीएस इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वो जंगल को एक मुख्तलिफ नजर से देखती थी। वो जानती थी कि उसकी चौकी से दूर जिन्नाती जंगल
کا قدیم خوف زمین کے نیچے سویا ہوا ہے اور وہ محافظ جنگل بن چکی ہے، صرف درختوں کی نہیں بلکہ اس قدیم معاہدے کی جسے اب کوئی لالچی انسان دوبارہ نہ توڑے۔ اور کبھی کبھی سردیوں کی رات میں جب ہوا بالکل خاموش ہوتی تھی تو عائشہ کو دور جنگل کی گہرائیوں سے ہلکی سی حسس کی آواز آتی تھی کہ ایک دھندلا، دور دراز اور خاموش وعدہ کہ مستقر صرف سویا ہے، اور اگر وہ چوتھا پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا تو وہ ایک بار پھر جاگ اٹھے گا۔